Good morning, everyone. In the last class, I did talk about homogeneous differential equation, and today I'll be continuing with the concept of differential equation, and we'll be talking about another very important form of a differential equation referred to as linear differential equation. So, what do we mean by a linear differential equation, and how we are going to identify it? A differential equation of the following form: dy by dx plus py is equal to q. If it is dy, it should be only y in the product with p. And what are p and q? They are the constants, or they are the functions of x only. This is very important condition on p and q. So they should be either a constant or they are the functions of x only. So such type of equation is referred to as your first order linear differential equation, and some of the examples are given. If you check them out, dy by dx, first example, dy by dx plus y is equal to sine x. So dy and y, and with this y multiplication mein it's 1 only. So p here will become 1 if I compare with the main equation, and q RHS में है as the function of x only. Similarly, for the second equation, now clearly one can note, first observation, it's of the following form only, with 1 by x as p and q will be e power x. And look at the third equation given as an example. So dy by dx plus y upon x sin x, x log x is equal to 1 by x. So if it is dy, this is y. So whatever is the coefficient of y, that will become our p, and q is given at the RHS as 1 by x. I hope the basic understanding is clear about identification of a linear differential equation. Next comes how to solve the given first order linear differential equation. The form is given. So here we calculate integrating factor referred to as IF. In short, IF. And this IF is given by e की power integral p dx. P is the coefficient of y only. Once we have calculated integrating factor, the solution is given by the following formula: y into integrating factor is equal to integral of q into integrating factor, and after the integration is over, plus c. And when I integrate this, it's a usual integration which will occur, and I will get my required answer. So everyone please make a note of these two formulas because they are very, very important for us. First thing, identification. Next, integrating factor. And next, how to write the solution to this differential equation. And this is the least calculative form in journal. If you have identified integrating factor wali form hai, then you'll be able to do it so easily. Generally a very simple type of integral. Yes, it may be a product rule based, it may be a partial fraction based, or a direct formula based. So such type of integrals may occur on the RHS. We are not going into the proof part.
A basic idea and hint is already given in NCERT textbook. If you are really interested, you can go through the same, but that is not a part of our required syllabus. हमें सिर्फ फार्मूला को इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है और कैसे फार्मूला लगाएंगे. So let me begin with one question. क्वेश्चन के लैंग्वेज सेम है, सॉल्व या सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन. So dy by dx plus secant x into y. Secant x into y is equal to tan x. So forget about the condition which is given. Though this must be hold true, then only we can solve this question. So anyway, when I look at the question carefully, dy by dx plus secant x into y is equal to tan x. So clearly given equation is लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब ये आपने आइडेंटिफाई किया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद P एज, ये P हो जाएगा और ये Q हो जाएगा. P हो गया secant x एंड Q इज tan x. कंपेयर किससे करा है? dy by dx plus P into y is equal to Q. So this is a standard form of a linear differential equation. I just compared with this to get P and Q. After P and Q, they are identified directly. Now, what is integrating factor? E की power integral P into dx. So this is the second thing जो आपको याद होना चाहिए formula. So integral of secant x, and what is the integral of secant x? It is log of secant x plus tan x. Just that यहां पर हम log के साथ mod यूज नहीं कर रहे हैं. कर लिया तब भी कोई गलत नहीं है, बट जनरली यू विल फाइंड इन एनी रेफरेंस बुक के आप नोट करेंगे, इवन एनसीईआरटी से लेकर कहीं भी देखेंगे, लॉग के साथ मॉड यूज नहीं हुआ है, बिकॉज ये तो ऑब्वियस है कि प्लस होगा ही होगा. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, e की पावर log x is always x whenever x is positive. E and log, they are the anti-process to each other. They are the anti-process. एक दूसरे का वो इनवर्स फंक्शन होते हैं, इसीलिए एक तरह से ये e and log लॉजिकली कैंसल होगा. एग्जाम में ऐसे काट के नहीं दिखाना है. लॉजिकल कैंसल and we left with the integrating factor as secant x plus tan x. और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया उसके बाद सिंपल है क्या? सॉल्यूशन इज गिवन बाय, व्हाट वाज द फार्मूला फॉर द सॉल्यूशन? चेक इट आउट. ये रहा y इंटू IF, y इंटू IF. इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल चुके हैं, secant x plus tan x is equal to इंटीग्रल q, और q कितना है? tan x इंटू IF and dx. अभी हम यहां प्लस सी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि मैंने अभी इंटीग्रेट नहीं किया है. सो y इंटू secant x प्लस tan x आ गया. अब बच गया RHS को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे? ओपन द ब्रैकेट, तो tan इंटू secant, चलो मैं उसे secant इंटू tan लिख देता हूं, और फिर आ गया प्लस tan स्क्वायर x, और tan स्क्वायर को इंटीग्रेट करने का एक ही तरीका है, राइट दैट एज secant स्क्वायर माइनस 1. Now I can integrate this easily.
चेक इट आउट, कितना आ गया ये RHS, सीकेंड एक्स tan x का इंटीग्रल हो गया सीकेंड x, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया tan x, 1 का इंटीग्रल हो गया x। क्योंकि अब सब कुछ मैं कर चुका हूं, एक तरह से इंटीग्रेट प्लस c कर देंगे, which is your required answer. But at the same time I can always eliminate y, ये RHS में आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1 प्लस, कैन आई राइट दिस, c माइनस x अपॉन सीकेंट x प्लस tan x। सो मैंने एक्चुअली इसे एक्सप्रेस कर दिया है एज अ सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू fx। Even if you do not go with this last step जो मैंने दिखाया है, that is absolutely okay, आप आंसर ये छोड़ सकते हैं। So this will be my required answer. Any step which is not clear? ये रूल्स जो हैं आइडेंटिफिकेशन के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला से लेकर सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला, वो आपको याद करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। Find the general solution of the following differential equation: x into dy by dx plus 2 into y equal x square. Yes, perfect. Yes, भानु, आप चेक करिए, सबसे पहला काम हमें dy by dx चाहिए, तो पहला स्टेप तो ये ऑब्वियस बन जाता है, डिवाइड बाय x, सो दैट dy by dx प्लस 2y by x इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय x हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से नोटिस करें, सो दिस इज dy by dx प्लस 2 by x इंटू y आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू x, एंड देन इन अ सिंपल कंपैरिजन, yes, perfect, p और q आइडेंटिफाई as भानु has mentioned, आप भी सभी देख लीजिए साथ में। इस तरह से जब एक्सप्रेस कर दिया डिफरेंशियल इक्वेशन को, सो हम क्या कहेंगे क्लियरली, गिवन इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद p is 2 by x and q is x। यहां तो अभी स्टार्ट करा है मैंने, डायरेक्ट टाइप का ही एक सिचुएशन रखी है। यहां dy है इन द न्यूमरेटर, तो यहां y होना चाहिए प्रोडक्ट में। इवन अगर यहां y स्क्वायर हो जाए, डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, वो दे आर रेफर टू एज बर्नौलीज इक्वेशन, बट दे आर नॉट इन आवर सिलेबस। तो ये देखने के बाद y का कोफिशिएंट हो गया p, और RHS में x का ही फंक्शन है, वो हो गया q। Once I have identified p and q, next step क्या रहा था, we need integrating factor. Now integrating factor is given by e की पावर इंटीग्रल p dx, so e की पावर इंटीग्रल 2 by x आ गया, replace the value of p. Now this is e की पावर 2 बाहर, इंटीग्रल ऑफ dx by x, और ये होता है log x, जैसा बताया, अब आप मॉड नहीं लगा रहे हैं। और फिर लॉजिकली सोचिए, log की प्रॉपर्टी से ये 2 जो है इसकी पावर बन जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व इट फर्दर।
तो ये हो जाएगा log x और इसकी पावर, तो x स्क्वायर बन गया। एंड एज मेंशन्ड e एंड log एंटी प्रोसेस होते हैं, तो दे विल गेट कैंसल्ड आउट लॉजिकली, और फिर बच जाएगा ओनली x स्क्वायर। सो प्लीज मेक श्योर कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें निकालना ठीक से आ गया है, बिकॉज ये तो बेस है। आफ्टर दिस ओनली फाइनल स्टेप वो क्या है? सॉल्यूशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला। आप पूरा लिख दो यहां पर, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स, प्लस c यहां लिखो या बाद में, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एक्स स्क्वायर, q कितना था? x, ये रहा, इंटू एक्स स्क्वायर आ गया, और y इंटू एक्स स्क्वायर इज इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब, एंड दैट इज ऑब्वियस, एक्स क्यूब का इंटीग्रल हो गया x4/4। अब क्योंकि इंटीग्रेट कर चुका हूं, आई वुड प्रेफर प्लस सी नाउ, और ये आंसर वैसे आ चुका है, बट एक स्टेप जैसा मैंने बताया, आप एक्स स्क्वायर को RHS में ले आइए, तो y विल बी, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, which is your final required answer, which is expressed in the form of y equal to fx. Chale, before we move on, everyone, mark your attendance in the chat box. Consider this exercise 9.6 from the NCERT book. dy by dx plus 2 into y is equal to sin x. So I'm sure now you all are able to identify it easily. ये dy और फिर y है, तो p is only 2, the coefficient of y, and q is arranged simply at RHS, which is sin x. So ये तो आइडेंटिफाई हो गया था कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है with p and q. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज गिवन बाय e की पावर इंटीग्रल p dx, which is e की पावर इंटीग्रल 2 dx. 2 कांस्टेंट है बाहर, और इंटीग्रल ऑफ dx सिर्फ x बचेगा। हर बार ऐसा नहीं होगा कि e एंड log मिलेगा ताकि वो एंटी प्रोसेस से कैंसल हो जाएं। दैट इज नो वे एनी हार्ड एंड फास्ट रूल, तो आई कैन नॉट फर्दर सिंप्लीफाई दिस। तो ये तो मेरे पास आ गया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नेक्स्ट व्हाट? डायरेक्ट सॉल्यूशन इज गिवन बाय y into if integral q into if dx. This is a direct learned formula. y into if इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऊपर निकाल चुके हैं, और q कितना था मेरा? sin x इंटू e पावर 2x dx. टास्क इज टू गेट दिस इंटीग्रल। अब ऐसे केस में इट इज हाईली रिकमेंडेड आप इसे आई, इंटीग्रल इन्वॉल्व हुआ है, इसे आई कह देते हैं, क्योंकि आई वन तो जरूरत ही नहीं, आई ही कह देते हैं, एंड कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1, वेयर व्हाट आई अज्यूम्ड, आई इज गिवन बाय sin x into e power 2x dx.
How I am going to integrate this? Anyone? कैसे होगा अब ये इंटीग्रेट? बाई पार्ट्स। और भी देखिए भानु के अलावा। यस, तो आप चेक करिए, इसके बाद बाई पार्ट्स लग रहा है द प्रोडक्ट रूल और आवर आइलेट रूल। एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज द सेकंड फंक्शन, so this is first, this is second, so therefore I will be given by, start करते हैं इंटीग्रेट करना बाई पार्ट्स। अब वो याद होना चाहिए, फर्स्ट एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस लार्ज इंटीग्रेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। लेट मी फर्दर सिंप्लीफाई दिस। ये तो एज इट इज, माइनस में हाफ सिर्फ बाहर हो गया, और अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो फिर से बाई पार्ट्स इन्वॉल्व हो गया है, तो आइलेट के अंदर अगेन आइलेट रूल इज अप्लाइड। ये तो एज इट इज कॉपी कर दिया, करिए अब इसे इंटीग्रेट, बाई पार्ट्स लगाते हैं फिर से। फर्स्ट एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस लार्ज इंटीग्रेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस साइन एक्स हो गया इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। लेट मी ओपन द ब्रैकेट, ये 1/4 हो गया, और फाइनली अगर आप ध्यान से देखें तो साइन सिर्फ माइनस में रहेगा, हाफ हाफ नहीं 1/4 आ रहा है, क्योंकि एक 2 बाहर भी है, तो ये 2 and 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, so that will finally give 1/4 into, note carefully, it is sin x into e की power 2x only. So first two integral first two values तो बिल्कुल as it is copy हो गया, this minus cos x e power 2x, ये चलो 4 से डिवाइड दिखा दिया, and this is nothing but your question itself into I। ये I के इक्वल ऑलरेडी चल रहा था, तो I इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये वाली टर्म इधर आकर प्लस हो जाएगी, सो I प्लस 1/4 I, 5/4 I बचेगा। कितना आ गया वो? एक तो e पावर 2x चलो मैं कॉमन निकाल दूं, और बाय 2 भी चलो मुझे कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय 2, ये बचा। रीअरेंज कर दो तो RHS में ये 5/4 4/5 हो जाएगा, राइट। कैंसिलेशन वगैरह के बाद आप चेक कर पाएंगे कि अल्टीमेटली इंटीग्रल की वैल्यू ये आ रही है, और वंस इंटीग्रल इज ओवर, now of course I can always write plus c, फाइनल इंटीग्रेशन हो चुका है। और लास्ट स्टेप क्या बचा? यूजिंग इन इक्वेशन 1 I की वैल्यू अब मैं यहां रिप्लेस कर दूंगा, y इंटू ई पावर 2x आ गया, 2/5 इंटू ई पावर 2x, and then this, and as recommended आप पूरी इक्वेशन को e पावर 2x से डिवाइड कर दो, ताकि सिर्फ y की वैल्यू मिल जाए। और यहां तो चलो e पावर 2x कैंसल हो गया,
और यहां c अपॉन में e की पावर 2x आ जाएगा, जिसे हम चाहें तो क्या लिख सकते थे, c इंटू ई की पावर -2x। जो अपॉन में आता वो ऊपर आकर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज योर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। भानु, आई जस्ट नोटिस्ड आप जो लिख रहे हो कि इसमें अगर हम एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा। वेरी फर्स्ट थिंग, एंटी लॉग के लिए बोथ साइड शुड बी सेम। तो आपको जो पावर माइनस पहले लिखी है माइनस लॉग एक्स, तो नेगेटिव पावर ऊपर आ जाएगी, तो लॉग ऑफ एक्स की पावर -1 बनेगा, और एक्स की पावर -1 एक्चुअली 1/x हो गया। तो एंटी लॉग लेने के बाद ये आंसर आएगा 1/x is equal to c. Everyone check out this next question and do let me know what is IF in this question. पहली बात तो भाई आइडेंटिफिकेशन प्लीज कर लीजिए कि ये लीनियर में कैसे है। सो फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए यहां पर, डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर x। तो डिवाइड कर दीजिए ताकि dy बाय dx का कोफिशिएंट यूनिटी बन गया 1/cos स्क्वायर, और RHS आ गया tan x बाय cos स्क्वायर। इसे थोड़ा सा बेटर वे में क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर हो गया secant स्क्वायर x, एंड ये कितना आ गया, ध्यान से देखिए, secant square x into tan x. So clearly this is linear differential equation. I'm sure identify कर पाए हैं आप सभी से, with this as P and this whole as Q. Integrating factor is given by e की power integral p dx, e की power integral secant square x, और secant square का इंटीग्रल होता है tan x। यहां पर एक चीज और भी आपने नोटिस करी होगी, जब मैं इंटीग्रेट करता हूं तो हमें प्लस c लिखना चाहिए, बट इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हम वो प्लस सी भी नहीं लिखेंगे, वो इसके फार्मूला के प्रूविंग में आ जाता है कि वो इसे एक्चुअल में ये बनता है e पावर tan x इंटू e पावर c, इट्स अ कांस्टेंट, तो वो फाइनल आंसर के अंदर ऑलरेडी कवर हो जाता है। तो इसीलिए सिंपल चीज समझिए, e की पावर tan x ही लिखेंगे, नॉट दी प्लस c। ये आ गया मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, and once I have got my integrating factor, अब इसके बाद क्या बचा, solution is given by, what is the solution, वो लाइन लिख देना, y into if is integral q into if dx। substitute the values, q है मेरा secant स्क्वायर इंटू tan x, और if इंटू e पावर tan x आ गया। इसे हम थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में लिखें, tan x इंटू e पावर tan x एक साथ कर दिया, और secant स्क्वायर x dx अलग कर दिया। अब थोड़ा प्रेजेंटेशन अगेन, से दिस इज I
इस इंटीग्रल को पूरे को I कह दिया. फॉर इंटीग्रल I लेट मी पुट tan x को t, secant square x dx हो जाएगा dt, so that my integral will become t into e power t dt. सिंपल आइलेट रूल लग गया. First as it is into integral of second minus large integrate derivative of first into integral of second, e power t कॉमन, और ये इंटीग्रेट के बाद आप चेक कर लीजिए इसके इक्वल आ गया. t की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए विद tan x. तो फाइनल सॉल्यूशन क्या हो गया? I की वैल्यू मैं यहां रिप्लेस करने जा रहा हूं, तो y इंटू ई पावर tan x इक्वल टू I, और I क्या है? e पावर tan x, और क्योंकि इंटीग्रेट हो चुका था तो ये अब मैं यहां ऊपर बिल्कुल प्लस c लगा दूंगा. एंड एज ऑलरेडी मेंशन्ड, y को एलिमिनेट करके दिखा दो, तो e पावर tan x से डिवाइड कर दीजिए बोथ द साइड्स, और ये ऊपर आकर पावर हो जाएगी माइनस tan x. So this is your final required answer. Yes. Any step which is not clear? तो सिक्स्थ सेवंथ एक जैसे ही क्वेश्चन जाएंगे. सेवंथ क्वेश्चन अभी देखिए. क्वेश्चन नंबर 7, एवरीवन. x log x into dy by dx plus y equal 2 by x into log x. तो सबसे पहला काम, डिवाइड कर दीजिए x log x से, so that the coefficient of dy by dx 1 बन जाएगा. और अब इसे जब मैंने x log x से डिवाइड करा तो चेक करिए, log x से तो log x कैंसल, ये आ जाएगा. फॉर्म अब इजीली आइडेंटिफाई हो गई है. ये हो गया P और ये है आपका Q. गेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल P dx. How I am going to integrate this? सोचिए ध्यान से. हम log x को t पुट करेंगे तो dx by x एक्चुअली बन जाएगा dt, और इंटीग्रल किसमें कन्वर्ट हो गया? dt by t, जो होता है log t के इक्वल. राइट. इसका मतलब ये e की पावर में क्या बचेगा? log of t, which is log x only. E and log NT process हैं, they will get cancelled out. और फाइनली एवरीवन प्लीज नोट कि आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसके इक्वल आ गया, log x. तो कई बार तो बहुत इजीली और डायरेक्टली आप निकाल पाएंगे, कई बार थोड़ा सा लॉजिक और ये सोचना रहेगा.
एंड दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर यही गलत हो गया इंटीग्रेटिंग तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और इसके बाद सॉल्यूशन इज गिवन बाय द डायरेक्ट लर्न फार्मूला। ये तो क्विक है, लिख दिया। सब्स्टिट्यूट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, how I am going to integrate this? जनरली यू आर फाइंडिंग दी प्रॉब्लम्स जहां पर आपको मिल रहा है। देखिए ये है log x इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर। अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन आइलेट, लॉगरिथमिक एंड अलजेब्रा। log फर्स्ट फंक्शन, अलजेब्राइक सेकंड फंक्शन हो गया। यूजुअल मेथड ऑफ इंटीग्रल बाय पार्ट्स, फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। अब ये क्विक याद होना चाहिए, 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस 1 बाय एक्स हो गया, माइनस लार्ज इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। ओपन दी ब्रैकेट, सो माइनस 2 log x बाय एक्स आ गया। और फाइनली इंटीग्रल का साइन कितना आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 टाइम इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर। और 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस 1 बाय एक्स है, सो ये आ गया। इंटीग्रेट हो चुका है सब कुछ, प्लस सी लगा देंगे, log x से डिवाइड कर दीजिए तो y विल बी माइनस 2 बाय, log x से डिवाइड कर रहा हूं तो यहां तो सिर्फ माइनस 2 बाय एक्स बचेगा, log से log कैंसल, एंड माइनस 2 बाय एक्स log x प्लस c by log x, your required answer. So we'll be having our next period, 5th period. So must join 5th period again. So उसमें we will continue with few more questions like this. और फिर मैं साथ में आपको कुछ सॉल्व एग्जांपल्स दिखा दूंगा, कुछ सॉल्व करेंगे और कुछ फॉलोड बाय सम सॉल्व एग्जांपल्स। Please mark your attendance and then you can leave the class. Thank you very much. Thank you, sir. Okay, good day.